Hello, Nikhil Jadhav. Good morning. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. बोलिए. Hello. Am I audible? Yes. Yes, Okay. yes. Yeah, so good morning to all of you. So, in this lecture, we are going to follow up that Canvas submission and all stuff if it is remaining right now. So, from one by one, can you tell me whether you are D2D student and how many topics are still remaining? Okay, for the submission. We're going with kind of the every students that how much you have completed and how much is remaining. Like if you are a regular student, so I expect like majority of the stuff you have completed. But if you are a D2D student, so you have a still time to do that. We'll wait for 2 to 3 minutes. Let everybody join. Okay, so in entire class we are going to discuss about that canvas and what are the further process that we are going to do, okay, for regular students and for the D2D students. So only 27 students we have right now in the class, and still more students are joining. We'll wait for 2 to 3 minutes. So if everybody join, then any issue, any kind of the stuff which is related to submission or canvas, if it is remaining, so we can discuss on that. So those who have already joined, okay, can they tell me the status that how many student has completed all their works, okay, in terms of all the assignments, rubric on demand, all the components. So how many students are there who has completed all this stuff? Okay, nothing is remaining. Just I need to give the marks of them, and most of the mark I have already given.
but some of the stuff like second unit test that I need to give the marks, but you have completed from your side. So can you tell me the status of the students? If you have done all this stuff, then write the done in the system, or write done in the here in chat box. So Parth has completed, Siam, Yes Kalola, Nasib Patel, Mihir Koringa, Umang, Darshan, Rutvik Bhatti, Yes Kalola. Other students also write the done if you have completed all the stuff in the canvas. Nothing is remaining, nothing is pending. All the remaining assignments, unit test, rubric on demand, everything you have submitted. If you have done so, so please write done in the chat box so I can get the idea that how many students out of the 60 has completed all this stuff. Please write if you have completed all this stuff, or it's about to complete in within this week. Okay, if your status like that, I will complete all this stuff before this weekend, before this Sunday. So also you should write that done in, or we can say no, I am not asking for D2D student, for regular student. Okay, for the D2D students, like those who have joined earlier, okay, and I think that all the portal is also open for them. And can D2D students tell me the status of their work, like how many stuff you have completed and what are the remaining stuff, and what is the expected date to complete this stuff? Okay, if you have completed, then tell me that it's all done. Otherwise, how many stuff which is remaining by D2D students also. So those who have joined earlier as a D2D, they can write their status that how much stuff is remaining and how much stuff is going to be pending over here. Can anybody, is there anyone in the class who has like who has not who has joined recently, okay, as a D2D students? Is there any students are there who has joined recently? Okay, Kuswant Bhatt. Yes, Kusant. When you have joined, can you open your mic and tell me? Kusant, can you tell me when you have joined? 2 to 3 weeks ago. So I think you are aware about that canvas and all stuff. And have you started submitting this stuff or not? Why? Because you have joined 2 to 3 weeks ago, and before that vacation also. So why you have not started, Kusan? Is there any reason? You have a precious time of that last week, okay, in which you have the holidays and all stuff, so you can complete maximum of them. Kusant, so you better ask me that, sir. I don't know about that. I have leaved my phone number also. I think you are in the group, or you don't know my name or any contact detail, my mail ID. Do you have anything? So those who have joined, no. So now I will tell you. So have you set up your canvas or not? First of all, tell me how many of you are there. How many in this entire class? How many of you are there who has not set up their canvas account yet? कितने लोग हैं जिसने अपना कैनवास अकाउंट भी अब तक सेट नहीं किया? कुशवंत आपको अब तक किसी मेल आईडी पे आया है कोई कैनवास इनविटेशन के लिए कुछ? नो. Just write your Marward University mail ID, so I'm going to add you in that particular portal. कुशान 3 वीक चले गए, अभी तक पूछना तो चाहिए ना भाई कि क्या चल रहा है सर, क्या करना है डीसीएन में. आप फोन तो करिए मेरे को, किसी के पास नंबर लेके कुछ भी. आप वो ग्रुप में है, वो जो आपका ऑफिशियल ग्रुप है व्हाट्सएप में. कुशान, कैन यू ओपन योर माइक एंड टेल मी? तो आप उसमें कांटेक्ट लेके मेरे को पूछिए तो सही कि सर क्या करना है इसमें, मैं क्या इसमें आगे ऐड करूं. Sorry, sir.
It's okay. It's not about the sorry. It's not regarding the apology. But तो 2 से 3 वीक चले गए, अब तक आपका आधा चीज खत्म हो गया होता अगर आपने पहले से पूछा होता। अभी आपको ही भागना पड़ेगा सबसे ज्यादा, इसलिए मैं आपकी चिंता इसलिए बोल रहा हूँ। सॉरी सर, मैं ट्राई करूंगा आप जल्द से जल्द वो कंप्लीट कर लूं। ओके, लेट मी जस्ट एड इट टू यू। आप अपना ये मेल आईडी चेक कीजिए, उसमें एक ना इनविटेशन आया होगा, कैनवास फ्री टीचर करके। आप वहां पे जाइए और वो एक्सेप्ट कीजिए और अपना ग्रुप बना के मेरे को भी बोलिए कि आपको डीसीएन नाम का सब्जेक्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। पहले ये करिए, चलिए फटाफट। और बाद में यहीं पे अभी का अभी ये सेटअप करके मेरे को एक्नॉलेज कीजिए कि सर हो गया, ठीक है। Sorry for that, my system was just crashed out, and due to that audio has been off. खुशांत, आप क्या कीजिए, is my voice is audible to you or not? यस। Okay, just a second. Okay, yeah, so am I audible? यस। ओके, सो आप क्या कीजिए, अभी मैंने आपके मेल आईडी पे एक इनविटेशन भेजा है कैनवास का, वो एक्सेप्ट कीजिए। और वो एक्सेप्ट करने के बाद कैनवास सेटअप हो जाए तो मुझे बाद में एक्नॉलेज करिए कि हो गया है मेरा कैनवास अकाउंट सेटअप। तो आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। इज देयर एनी अदर स्टूडेंट हु हैज नॉट have their canvas account yet, or is there any issue with their canvas account, और नहीं पता है कि क्या करना है? कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे तो प्लीज अभी मुझे बताइए। D2D स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट, जो भी क्वेरी है अभी सोल्व कीजिए। हमारे पास 1 घंटा है सब क्वेरी सोल्व करने के लिए। इट्स ओपन फॉर ऑल। हाँ बोलिए खुशांत। सर वहाँ पे मेरे को पूछ रहा है कि आई हैव अकाउंट और क्रिएट माई अकाउंट, तो वहाँ पे मेरे को क्रिएट अकाउंट, यू नीड टू क्रिएट अकाउंट, ठीक है। ओके। ओके, क्रिएट अकाउंट करिए, अपना पासवर्ड डालिए तो कैनवास में आपका सेटअप हो जाएगा, ठीक है। और कोलकाता सेट कीजिएगा उसमें नीचे टाइम जोन में, ओके। यूएस कनाडा की जगह। पासवर्ड मेरा खुद का नहीं आएगा हाँ या हाँ फिर वो? हाँ, नहीं आप ही सेटअप कीजिए जो आप याद कर सको, ठीक है। हाँ, टाइम जोन में। के कोलकाता। Yatin, you write your Marward University ID over here so I can edit to the canvas. जो भी D2D स्टूडेंट का अब तक का कैनवास सेटअप नहीं हुआ है, अपना मेल आईडी लिखिए यहाँ पे फटाफट, चलिए तो मैं उसको भी लिंक भेज दूं। और अगर किसी को डाउट है, कुछ भी है, तो अभी बताइए कि सर ये नहीं पता चल रहा, क्या करना है, क्या सब चीजें बाकी है। आप प्लीज मेरे को बताइए सब लोग, चलिए फटाफट। How many D2D students are right now who is present over here? Kindly say yes, those who are the D2D students right now. Kindly type a yes in the chat box so I can get how many D2D student has already there in my class, please. सर मेरा हो गया, अभी आगे Okay. उसमें क्या कर? अभी आपको DCN दिखा रहा है आप में? हाँ ओके, डीसीएन दिखा रहा है ना, ठीक है। चलिए एक हाँ। मिनट में पहले मैं यतीन का भी ये एक कैनवास पे ऐड कर देता हूँ, बाद में मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली आपको क्या करना है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। यस यतीन, आप चेक कीजिए अपना कैनवास अकाउंट।
अगर उसमें कुछ नहीं है तो आप बताइए, अगर आपको उसमें सेटअप नहीं हुआ है अभी तक तो चलिए वो एक्सेप्ट कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है, ठीक है। ओके, अभी ये सुनिए, जितने क्या करना है आपको, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो आप ये जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो आप देखिए, और आपको क्या करना है मैं सिंपली बता देता हूँ। ये सब लोग D2D जिसको पता है नहीं पता है वो मुझे अभी, ये सब हमको प्रॉब्लम अभी सॉल्व करना है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट तक आपको कुछ पता ही ना हो और आप 0 मार्क लेके आप यहाँ से निकले, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। सो इज दैट माय स्क्रीन विजिबल? यतीन और ये दोनों खास आप देखिएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम है, ठीक है। चलिए, सो आप जाओगे तो आपके होम में यहाँ पे कुछ एक DCN सब्जेक्ट करके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और सब चीजें होगी। मैं सिंपल वर्डिंग में बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है, सब लोग देखिएगा, ठीक है। जिसका बाकी है नहीं बाकी है, D2D स्टूडेंट है, पता है नहीं पता है, कुछ भी हो, सिंपली आप कुछ मत कीजिए। कहाँ जाइए? आप डायरेक्टली ग्रेड में जाइए, ठीक है। आप ग्रेड में जहां पे जाते हो तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी चीजें सबमिट करनी है और कौन कौन सी चीजों पे आपको मार्क मिलना चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ यही देखना है ग्रेड बुक में जाके, ठीक है। लेट दिस ग्रेड बुक शुड बी ओपन। Let me go to the grade book of any one of the student. It will take time because it's loading kind of the big exercise sheet. Okay, मैं अभी खुशांत भट्ट का ही चलिए ग्रेड बुक ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या उसमें है। जैसे ही आप अपने कैनवास अकाउंट में जाओगे आपको एक ग्रेड दिखेगा, ठीक है। ग्रेड्स करके कुछ होगा। जैसे ही आप ग्रेड्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अपना पूरा ग्रेड शीट देखने को मिलेगा। यहाँ पे continuously I need to check because that system is sometimes yes। so ये सब लोग देखिए कि आपको ग्रेड शीट में यहाँ पे जो भी दिया हुआ है आपको वो सब चीजें यहाँ पे कंप्लीट करनी है, ठीक है। आपको जितना भी यहाँ पे जो भी असाइनमेंट, चैप्टर, एक्सपेरिमेंट जो भी दिया हुआ है आपको सब सबमिट करना है। एक बार आपने सब सबमिट कर दिया तो मार्क ऑटोमेटिकली आपके, मैं इसी सिस्टम में से ले लूंगा। मैं बताता हूँ, विवेक बताता हूँ कि अगर मिसिंग है तो उसका क्या करता है, ठीक है। आप सिर्फ ये देखिए, आप सिर्फ ये देखिए, जितने भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब आपको सबमिट करना है। पहले ये बात समझ लीजिए। उसमें से अभी आपको क्या देखना है कि यहाँ पे 25 मार्क्स की एक्सरसाइज होगी, ठीक है। 25 मार्क्स की एक्सरसाइज, यहाँ पे आप मार्क देख सकते हो, मार्क देख सकते हो आउट ऑफ, ठीक है। उसमें 25 मार्क्स की जो एक्सरसाइज है वो ढूंढिए कौन कौन सी है। एक्टिव लर्निंग वीडियो मेकिंग, रूब्रिक ऑन डिमांड, ओके। C++ कोडिंग, रूब्रिक ऑन डिमांड, ओके। बाद में और 25 मार्क्स की एक्सरसाइज क्या है, सिस्को पैकेट ट्रेसर, रूब्रिक ऑन डिमांड, ठीक है। बाद में 25 हार्डवेयर प्रोजेक्ट, रूब्रिक ऑन डिमांड, और ऑनलाइन क्विज, रूब्रिक ऑन डिमांड। तो ये जो असाइनमेंट पे रूब्रिक ऑन डिमांड लिखा हुआ है, ठीक है, 5 यहाँ पे चीजें जो 25 मार्क्स की है जिसमें रूब्रिक ऑन डिमांड लिखा हुआ है, ये 5 में से कोई एक करना है आपको। क्या करना है? ये जो 25 मार्क की जो भी एक्सरसाइज है उसमें से कोई भी एक एक्सरसाइज आपको करना है। यू नीड टू डू ओनली वन आउट ऑफ दिस 25 मार्क्स ऑफ द 5 एक्सरसाइज। इसी में किसको डाउट है या नहीं? ये जो 25 मार्क की एक्सरसाइज है उसमें से जो 5 एक्सरसाइज है उसमें से कोई भी एक एक्सरसाइज आपको करनी है, बाकी का सब, ओके। तो 4 बाकी रह गई, आप 5 में से एक करोगे तो 4 में आपको कुछ नहीं करना है। उसके अलावा जो भी चीज है वो सब आपको सबमिट करना है, ठीक है। अभी आप बोलोगे सबमिट कैसे करें, कहां से इसका ये सब चीजें, तो आप क्या कर सकते हो, यू आस्क योर D2D क्लास, यू आस्क योर फ्रेंड्स क्या करना है क्या चीज नहीं, ये सब कुछ चीजें। पहले ये चीज सबको समझ में आनी चाहिए कि आपको रूब्रिक ऑन डिमांड में जो 25 मार्क की 5 एक्सरसाइज है उसमें से कोई भी एक करना है, ठीक है। अभी और क्या आपको करना है, और सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यूनिट टेस्ट 1 एंड यूनिट टेस्ट 2, ओके। यूनिट टेस्ट 1 क्या होगा,
जितने अभी जो भी D2D स्टूडेंट अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं और जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं, वो सब के लिए हम जब भी आपका मिड सेमेस्टर होगा या नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, जब आपके डिपार्टमेंट में से हम डिसाइड करके हम आपको एक डेट देंगे। ओके, उस डेट पे आपको एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, लाइक इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक, हम आपको एक टाइम देंगे। वो टाइम में आपको वो यूनिट टेस्ट 1 के लिए अपीयर होना है और आपको वो एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, हम आपको एक टाइम देंगे, भाई ये इतने बजे से इतने बजे तक, ये 2 घंटे के अंदर आपको ये यूनिट टेस्ट आपको अटेम्प्ट करनी है। वो यूनिट टेस्ट में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट टेस्ट में क्या होगा, दैट इज एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड एक्सरसाइज। एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चन की एक टेस्ट होगी, वो आप 2 बार दे सकते हो 2 घंटे में। एक टेस्ट के लिए आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा। ओके, फॉर वन टेस्ट यू हैव अ 50 मिनट ऑफ टाइम। ऐसे आप 2 टेस्ट दे सकते हो, 2 अटेम्प्ट दे सकते हो 2 घंटे में, और बेस्ट ऑफ 2 जो मार्क होंगे दोनों टेस्ट में से वो कंसीडर किए जाएंगे। इज दैट ओके विथ यूनिट टेस्ट 1? किसी को डाउट है इसमें या नहीं, ये बताइए पहले। चलिए, if you have no doubt, especially D2D student, write no 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 like that, give me a feedback, so मुझे पता चले कि भाई आपको कन्विंस हो गया है या आपको अभी कोई डाउट नहीं है। चलिए, जो भी स्पेशली D2D स्टूडेंट है फटाफट बताइए, एनी डाउट इन दैट वन, यूनिट टेस्ट 1? मतलब सर उसके बीच में कोई ओके, टाइम टेप होगा या फिर नहीं, मतलब कैसे 2 बार एक आप साथ? मैं 2 घंटे का टाइम दूंगा। एक टेस्ट का 50 मिनट का टाइम है मैक्सिमम। एक टेस्ट 50 मिनट में खत्म हो जाएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट। दूसरा अटेम्प्ट भी 50 मिनट का होगा। हम आपको 120 मिनट दे रहे हैं, तो आप उसके बीच में 20 मिनट का गैप ले लो, कुछ भी करो, लेकिन वो 2 घंटे में वो 2 अटेम्प्ट आपको करने हैं, और बेस्ट ऑफ द 2 इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड। समझ गए आप? यस सर। ओके, चलिए, ये हो गया यूनिट टेस्ट 1 का। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट इज गोइंग टू बी यूनिट टेस्ट 2। अब यूनिट टेस्ट 2 का क्या आपको करना है? ओके, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। यूनिट टेस्ट 2 में आपको एक पेपर मिलेगा। कहाँ पे पेपर मिलेगा? लेट मी शो इट टू वन ऑफ द स्टूडेंट। ओके, मैं एक स्टूडेंट का आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आपको पता चले कि कहाँ से आपको पेपर मिलेगा। अभी जो नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए उसको यूनिट टेस्ट 2 का पेपर अभी मैं 20-25 मिनट में अभी अपलोड कर देता हूँ। लेकिन मैं एक स्टूडेंट का आपको ऑलरेडी बताता हूँ कि आपको यूनिट टेस्ट 2 का पेपर कहाँ से मिल सकता है। इन बिटवीन वो क्वेरी थी, जो भी अभी मिसिंग दिखा रहा है आप सबमिट करना चालू कीजिए। अगर मिसिंग हो गया है तो अभी सब पोर्टल विवेक ओपन ही है, अभी सब आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो, किसी में भी डेडलाइन अभी नहीं है, तो सब आप सबमिट करना चालू कर दो। अभी सब चीजें ओपन ही है, तो आपके पास इनफ टाइम है ये सब सबमिट करने के लिए। ठीक है विवेक? ओके, give me a 1 minute, so I will just demonstrate on that how that the unit test 2 paper you can access. ओके, चलिए, मैं कोई भी एक स्टूडेंट्स का यूनिट टेस्ट 2 का एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। ओके, यूनिट टेस्ट 2 है, तो आप ऐसा कंसिडर कीजिए कि आपका नाम है। आप जब भी अपना ग्रेड सीट पे, लेट मी गो टू द ग्रेड सीट ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट। अब जैसे ही अपनी ग्रेड सीट पे जाओगे, आपको क्या पता चलेगा? यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट over here, like just next after the unit test 2 you will find such type of the chat box. आप यूनिट टेस्ट 2 के ऊपर क्लिक कीजिएगा ना यहाँ पे, तो आपको नीचे एक पेपर मिलेगा ऐसा पीडीएफ करके, सी अटैच फाइल, और वहां पे एक पेपर होगा, वो आपका यूनिट टेस्ट 2 का पेपर है। ठीक है, वो पेपर को आपको डाउनलोड करना है, और उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आपको सॉल्यूशन लिखना है। कहाँ, किस में? फाइल पेज में, नोट पेज में, कहीं पे भी लिख सकते हो, लेकिन
टाइप करके नहीं, आपको हैंड रिटन लिखना है, उसका स्कैन करना है और स्कैन करके आपको यहाँ पे फिर से अपलोड करना है। इज दैट ओके विथ एवरीवन? यूनिट टेस्ट 2 के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ऐसा चैट बॉक्स यहाँ पे दिखा होगा, आप वहां पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, वो पीडीएफ फाइल आपका क्वेश्चन पेपर है, उसका आंसर लिख के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ स्कैन करके एक कंबाइंड पीडीएफ बना के आप फिर से सबमिट कर दो, मैं यहाँ पे वो पेपर देख के आपको मार्क दे दूंगा। इज दैट ओके विथ एवरीवन? एनी डाउट इन एनीथिंग इन कैनवास, और क्या करना है क्या नहीं पता, ये क्या है, आप जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो भी D2D स्टूडेंट है, आई होप जो भी रेगुलर स्टूडेंट है वो सब ने अपना काम खत्म कर दिया है। अगर नहीं हुआ है तो फिर भी अभी टाइम है, ऑलरेडी अभी रेगुलर सेशन चल रहे हैं, तो आप जो भी अपना पेंडिंग मिसिंग असाइनमेंट है वो सब आप अभी सबमिट कर सकते हो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली डू दैट। ओके, और आप वो कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अगर अभी कोई भी डेडलाइन नहीं है, ठीक है, D2D स्टूडेंट के लिए तो अभी कोई, जब तक अभी टर्म एंड होता है तब तक ये सब चीजें ओपन है। जैसे ही एक बार आ गया कि भाई ये डेट पे ये टर्म एंड का डेट है, विच इज द लास्ट डेट फॉर ऑल दी स्टफ, अभी कुछ डेडलाइन नहीं है। अगर कोई असाइनमेंट में डेडलाइन है, आप नहीं सबमिट कर पा रहे हो, तो मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन अभी कुछ डेडलाइन नहीं है। जो भी पेंडिंग है, जो भी चीज बाकी है, सब लोग सबमिट करना चालू कर दीजिए। अगर कोई मिसिंग है, भूल गए थे, कुछ भी हो गया था। हेलो क्या सर, है विवेक? यस, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए, चलिए बोलिए सर, पाल। एक्स्ट्रा क्लास में जो जो कवर हुआ है उतना हमने किया है, उससे हम्म, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैनवास में क्या क्या करना है। आप आप वीडियो लेक्चर का लिंक भी आपने शेयर किया होगा ना, समीर सर ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया होगा, जिसमें जो रिकॉर्डेड लेक्चर है जो हमने प्रीवियसली कंडक्ट किए थे वो सब उसमें थे। तो जो टॉपिक आपका क्वेश्चन, अगर आप यूनिट टेस्ट 2 कर रहे हो और यूनिट टेस्ट 2 में लेट्स टेक आपको मल्टीप्लेक्सिंग का क्वेश्चन आता है, तो मल्टीप्लेक्सिंग का वीडियो है, उस लिंक में से देखिए, फंडामेंटल क्लियर कीजिए और बाद में आंसर लिख लीजिए। हो सकता है ना पाल? ओके सर। इज दैट ओके? आपको ओके एक ओके। डॉक्यूमेंट मिला होगा समीर सर के तरफ से, वहां पे 52 लेक्चर्स का पूरा रिकॉर्डिंग का एक डॉक्यूमेंट है जो हमने ऑलरेडी किए थे। तो वो लिंक के ऊपर हाँ क्लिक सर। करके वो टॉपिक देखिए और सबमिट कर दीजिए, तो ये फटाफट हो जाएगा। इज दैट ओके विथ ओके एवरीवन? सर। चलिए विवेक, आपका क्या क्वेश्चन था? मेरा यूनिट टेस्ट 2 का हाफ पेपर कंप्लीट हो और ओल्ड मुझे असाइन हुआ था, वो मैं नहीं समझा। विवेक आप क्या कर रहे हो? आप माइक ओपन करके मुझे बताइए। हेलो। हाँ, विवेक, ऑलरेडी जो पेपर असाइन हुआ है ना। हाँ हाँ, हेलो। यूनिट टेस्ट 2 का बोल रहे हाँ हो हाँ, विवेक आप? वो मैंने हाफ कंप्लीट कर दिया है। हाँ हाँ, तो तो वो चलेगा ना? अभी आपने ओके। कहा न्यू असाइन करूंगा मैं थोड़ी देर में। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों का अब तक यूनिट टेस्ट 2 ऐसा ही नहीं हुआ, अगर ओ- आपके अकाउंट में जो यूनिट टेस्ट 2 का पेपर दिखा रहा है, हाँ आपको वही करना है। हाँ। जिन लोगों जो लोग लाइक अभी 3-4 स्टूडेंट अभी नए ज्वाइन हुए और अभी उसका यूनिट टेस्ट 2 का पेपर नहीं होगा क्योंकि अभी कैनवास ज्वाइन किया है, तो उसके लिए मैं अपलोड करूंगा पेपर। ठीक है, आपको जो मिला है आपको वही करना है, जो पहले ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, और कोई नया ओ, पेपर नहीं आएगा। ठीक है, ओ, ओके ओके। गॉट इट? ओके, यस। सो जिन लोगों को यूनिट टेस्ट 2 का पेपर ऑलरेडी मिल गया है, वो उसी का आंसर लिखिए। जिसको नहीं मिला है, जो अभी ज्वाइन हुए हैं, मैं उसके लिए पेपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए बोलिए साक्षी। कैन वी राइट आंसर फ्रॉम द पीपीटी बिकॉज इन पीपीटी ब्रीफ? आप कहीं से भी लिखिए आंसर, कोई बात नहीं। आपको तो हैंड रिटन लिखना है। ठीक है, यू कैन राइट फ्रॉम एनीथिंग, पीपीटी और एनी, ये टेक होम टेस्ट पेपर है, तो आप कोई भी रिसोर्सेज यूज कीजिए, पीपीटी यूज कीजिए, ब्लॉग यूज कीजिए, बुक यूज कीजिए, कुछ भी, आपको घर पे लेके जाना है, ऐसा ही है ना। और इसके लिए डेडलाइन कुछ नहीं है, तो आपके पास 1 वीक 2 वीक, जब तक डेडलाइन है, जब तक टर्म एंड होता है, तब तक आप ये सब चीज लिख सकते हो कहीं से भी। बट आपको हैंड रिटन फाइल पेजेस में या नोट में लिखना है और उसको स्कैन करके वापस अपलोड करना है। इज दैट ओके साक्षी? इज द सेम थिंग यू वांट टू आस्क और एनीथिंग एल्स? गॉट इट, गुड वन। एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? चलिए डाउट पूछिए तो मुझे पता चले। जो लोग अभी लेट ज्वाइन हुए, नहीं पता चला क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर पाऊंगा। इज देयर एनी इश्यू, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव, शुभम बोलिए। सर एक्सपेरिमेंट में कैसे करना है सर, उसमें समझ में नहीं आ रहा है।
एक्सपेरिमेंट अपना एक्सपेरिमेंट लैब में मैन्युअल क्या, है ना। हाँ अच्छा देखिए चलिए मैं बताता हूँ एक्सपेरिमेंट में क्या करना है। आप क्या करिए कि एक, लेट मी गिव यू द काइंड ऑफ द डेमो ओवर हियर। चलिए लैब मैन्युअल में, चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ठीक ठीक है, सैंपलिंग। तो जैसे ही आप सैंपलिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे एक डॉक फाइल खुलेगा, ठीक है। ये डॉक फाइल में क्या क्या एक्सरसाइज दी हुई है सैंपलिंग के हिसाब से, अगर आप नेट में से यूज कर सकते हो, अपने फ्रेंड का हेल्प ले सकते हो। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो चैनल में जाके। लेकिन इसमें जो जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर आपको यहाँ पे लिखने हैं कि भाई ये सैंपलिंग है, आप ए और बी यहाँ पे देखिए और नीचे क्या आंसर इसका हो सकता है, वो सिर्फ आंसर लिखिए यही वर्ड में, और वापस से यही वर्ड फाइल आप अपलोड कर दीजिए। आप इसको डॉक आपके नोटपैड में भी लिख सकते हो, नोट में लिख सकते हो, आप ये वर्ड में ही आंसर लिख के फिर से अपलोड कर सकते हो, देयर इज नॉट एन एनी इश्यू। तो आप ये क्वेश्चन पढ़िए, फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन ड्रॉ द सैंपल सिग्नल। ओके, ये आपका स्क्वेयर वेव है, ये आपका साइन वेव है, इसका सैंपल सिग्नल कैसा होगा आप यहाँ पे ड्रॉ करिए या फिर अपने नोट में ड्रॉ करके वो पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, विच इज अप टू यू। लेकिन आपको क्वेश्चन में देख के उसका आंसर नीचे लिखते जाना है, दैट्स इट, द स्टफ वी हैव। यहाँ पे अगर सैम्पलिंग है कि भाई कंप्यूटर बेस एनआई मल्टी सिम में सैम्पलिंग ऐसा होता है, सो दिस इज एंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू बी रिटन ओवर हियर। ओके, अगर आपने मल्टी सिम में ये, अगर आप में मल्टी सिम नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से मल्टी सिम लेके उसका इंस्टॉलेशन अपने लैपटॉप में कर लीजिए, और एट द एंड जो उसका आंसर आता है ये सर्किट पूरा बनाने के बाद, ये मल्टी सिम का सर्किट यहाँ पे दिया होगा, इफ आई नॉट गोइंग विद दैट, लेट मी जस्ट गिव द मल्टी सिम। अगर ये मल्टी सिम के लिए आप for the multi-sim there are a PPT also going to be there, if I'm not wrong. Let me just show it you over here. Snapshot of your work, then उसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है चलिए रुकिए मैं देख लेता हूँ सैम्पलिंग का पीपीटी क्या है, तो आप सैम्पलिंग का पीपीटी भी यूज कर सकते हो। एक सेकेंड में बताता हूँ। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट है उसके जो भी आंसर चाहिए, स्नैपशॉट चाहिए, वो सब चीजें वहां पे ऐड करके लिखनी है। चलिए मैं आपको सैम्पलिंग का, अभी ये सैम्पलिंग का एक्सरसाइज है, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप जाइए यूट्यूब में, आप डॉक में लिखो या फिर पेज में लिखो, कन्वीनियंट इज इट एज पर योर कन्वीनियंट। मैं अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पूरा एक्सरसाइज आ जाना चाहिए। दिस इज माय मेन रिक्वायरमेंट यू हैव। जो भी आपने किया है वो सब चीजें वहां पे आ जानी चाहिए, इस हिसाब से आपको सबमिट करना है, ठीक है। कैन एनीबडी टाइप दैट नेम ऑफ दैट लिंक ओवर हियर, जो हमारा यूट्यूब का लिंक है सैम्पलिंग चैनल का, B2CE, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट कोई टाइप करके लिखेगा तो मैं डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेशन दे सकूं। Anybody please type it in a chat box, that YouTube link that all of us are using, okay, for our ओके, ये लिंक ही मैं पेस्ट कर देता हूं। आप चैनल आप जा सकते हो, आप मैं बताता हूं कौन सी चैनल आप शेयर करोगे। यस, B2CE लाइव MEFGI, आप ये चैनल पे जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट हो गए, ओके, आप प्लेलिस्ट में डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में जाइए। आफ्टर गोइंग टू डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग आप सर्च कीजिए सैम्पलिंग का कौन सा एक्सरसाइज है इसमें, ओके। जो भी सैम्पलिंग का एक्सरसाइज वहां पे दिया हुआ है, वो सैम्पलिंग का एक्सरसाइज में कौन सी सर्किट यूज की हुई है, वो सर्किट आपको मल्टीसिम में बनानी है, और वो बना के उसका जो भी आंसर है वो यहाँ पे आपको असाइनमेंट में, यहाँ पे जो सैम्पलिंग का जो भी डॉक फाइल दिया है वहां पे पेस्ट करना है। रिमेनिंग आंसर है उसके, क्वेश्चन है उसके आंसर लिखने हैं, और जो भी पूरा डॉक्यूमेंट है वो फिर से यहाँ पे सबमिट कर देना है। इज दैट ओके विथ that one or not? Yes, Sakshi has written B2CE live MEFGI. Is that okay? Yes. Is there any doubt, any question? Yes, was there? Yes, any doubt? Somebody has opened their mic.
खुशंत भट्ट, आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई खुशांत, ये बताइए। हेलो खुशांत, प्लीज ओपन योर माइक एंड टेल मी, कौन सी चीज समझ में नहीं आई स्पेशली? लास्ट में जो आपने बोला। ओके, करना क्या है आपको, आप एक्सपेरिमेंट में गए, यहाँ पे पूरा जो डॉक्यूमेंट है, व्हाट इज योर मेन प्रायोरिटी, यू नीड टू राइट आंसर ऑफ ईच एंड एवरी स्टफ विच इज रिटन ओवर हियर। तो वो एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, प्री एक्सरसाइज, पोस्ट एक्सरसाइज, ऐसा सब चीजें हैं। तो ये जो पहले प्री लैब एक्सरसाइज है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है उसके आपको आंसर लिखने के, भाई ए का वेव फॉर्म ऐसा है, बी का वेव फॉर्म ऐसा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप उसका जो वेव फॉर्म है वो नोट पैड में लिख सकते हो आप, या फिर कोई पेज में लिख के उसको स्कैन करके भी चिपका सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, अगर जो भी क्वेश्चन डायरेक्टली आप यहाँ पे वर्ड में पेस्ट कर सकते हो तो आप वो भी पेस्ट करो, अगर नहीं कर सकते हो तो बुक में लिख के उसका स्नैपशॉट लिख के यहाँ पे चिपका सकते हो। लेकिन ये सब चीजों के आंसर वहां पे आने चाहिए। लास्ट में मैंने बोला कि आपको क्या करना है कि भाई आपने एक्सरसाइज यहाँ पे बताई है सैंपलिंग की, तो ये जो प्रोसेस पूरा है यहाँ पे मल्टी सिम का आपको सिमुलेशन सर्किट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी मल्टी सिम का आप सिमुलेशन सर्किट कैसे करोगे, तो जो ये चैनल की ये जो चैनल आपने अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में आपके कलीग ने यहाँ पे लिखी, ये भाई चैप्टर कौन सी लिंक है, BTCE2 live.MEFJ। आप अगर ये चैनल पे जाते हो, वो आप चैनल पे आप सैंपलिंग का जो हमने एक्सरसाइज किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट आप रिकॉर्डिंग लेक्चर वहां पे देख सकते हो। तो वो रिकॉर्डिंग के टाइम पे वो सैंपलिंग का कौन सा सर्किट फैकल्टी ने करवाया था, ऐसा सर्किट आपको मल्टी सिम में बना के वो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे आपको लगानी है, और उसका जो आंसर आता है वो नीचे आपको अटैच करना है, दैट्स इट। और जो भी आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, पोस्ट एक्सरसाइज, कंक्लूजन, ये लिखना है और ये एक्सपेरिमेंट खत्म करके फिर से यहीं पे सबमिट कर देना है। इज दैट ओके और नॉट खुशांत? उसमें जो प्रोसीजर दी गई है वो फॉलो कीजिए। कैसे फॉलो करना है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइए। आप कैनवास में जाके स्टडी मटेरियल भी होगा, तो मोस्ट ऑफ द पीपीटी अवेलेबल ओवर देयर ऑल्सो, कि भाई सैंपलिंग की है तो सैंपलिंग की पीपीटी और जो भी चीजें है वो वहां पे भी दी होगी, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो मेरे को बताओ कि सर ये सैंपलिंग की पीपीटी नहीं है तो हम कहाँ से करें, तो हम वो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे मेन पेज में जा सकते हो, या फिर आप असाइनमेंट में देख सकते हो, ठीक है। अनाउंसमेंट में, असाइनमेंट में, सब जगह पे आपको वो सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप वो पीपीटी फॉलो कीजिए। अगर आपके पास वो पीपीटी नहीं है, वीडियो लेक्चर नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए, मैं वो वीडियो लेक्चर आपको लिंक है वो फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। So likewise you need to do that stuff and all kind of the exercise. Is that okay? Anything, anyone want to ask anything extra? हेलो सर। देवांग पारेख, हाँ बोलिए। सर इतना टाइम में कैसे पॉसिबल है, सब 1-1.5 घंटे की वीडियो से। मैं क्या कह रहा हूँ, करने हैं हमें। मनन, आप कब ज्वाइन हुए? मैं 3 वीक पहले। नहीं, ये 10th डे है सर हमारा। मनन तेजस, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि भाई मैं आपके सब मार्क काट दूंगा, मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना। आप चालू तो कीजिए। आप बोलोगे सर कुछ नहीं होगा, मैंने बोला कि 2-2 घंटे के लेक्चर आप जो एक्सरसाइज के लिए जो चीज चाहिए आप उतना ही पार्ट देखिए ना, कि ये सर्किट है उसका। मैंने ये भी मैं बोल रहा हूँ, टेक अ हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स विच इज अवेलेबल इन योर क्लास। आप उसको कांटेक्ट करिए, उसको बताइए कि भाई इसका क्या एक्सरसाइज है, उसका रेफरेंस फाइल देखिए, उसमें से उसने क्या क्या फॉलो किया है, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो ना। 2 घंटे का लेक्चर है तो पूरा मत देखिए, वो पार्ट देखिए जहां पे सर की ડીએસ માં પણ वही पार्ट आप बना પ્રેક્ટિકલ के સર કરાવવાના છે, એને એમ કીધું કે જેટલા થશે એટલા આપણે કવર કરશું એક્સ્ટ્રા માં, તો તમે એવું પોસિબલ હોય તો કરી દો ને સર। બ્રીફ ઇન્ફોર્મેશન બધા પ્રેક્ટિકલ એક્સપેરિમેન્ટ કહો છો? યસ મનન, આર યુ આસ્કિંગ સમથિંગ? બધા તમે એક્સપ્લેન કરી યસ દેશો? મનન, આર યુ સેઇંગ સમથિંગ? એક્સપેરિમેન્ટ છે એક્સપેરિમેન્ટ મલ્ટી સિમ્યુલેશન એક વસ્તુ આ બધું થતા પહેલા એક વસ્તુ હું ઓકે, હું જે આપણે હમણાં એક્સરસાઇઝ આપણે
એક્સ્ટ્રા ક્લાસીસ કે જે છે તમારે એક્સપેરિમેન્ટ માટે પણ ગોઠવાયેલા છે લેક્ચર અત્યારે બીજા સબ્જેક્ટમાં? હા સર, ડીએસ માં ગોઠવાયેલા છે. સરે કીધું કે જેટલા થશે એટલા અમે કરાવશું. ઓકે ઓકે હા સર, ઓકે પેલા પણ આપણે કીધું જે હતું ને આપણી કે પાસે છે આપણે અત્યારે રેગ્યુલર લેક્ચર. હા આનંદ. એક્સ્ટ્રા ક્લાસમાં આપણે કરશું તો હા હું નકર કહું છું અત્યારે સાંભળો વિડિયો હું કહું. લેક્ચર. ઓકે હા અત્યારે આજે આજનો લેક્ચર હું આ શા માટે ઘણા બધા નવા જોઈન થયા એને ખબર નહોતી કે શું કરવું એટલા માટે આ બધું મેં સમજાવ્યું. હવે પછીના જે લેક્ચર છે બધા આપણે અત્યાર સુધી આવશે 2 વીકમાં આપણે એમાં એક્સપેરિમેન્ટ જ કરીએ કે ભાઈ આ રીતે સેટઅપ કરવાનું આમ કરવાનું તો જેથી તમને ખ્યાલ આવી જાય તો તમે ફટાફટ ગ્રાસ્પ કરી શકો. ઇઝ ધેટ ઓકે તેજસ, મનન, આનંદ? હા સર, બરાબર છે. Yes, sir. અને બરોબર છે ને આપણે એમાં કરી. અને હા બરોબર છે sir. એક મસ્ત વસ્તુ તમને સમજાવું. તમે આ બધું કરતા પહેલા એક વસ્તુ હું તમને સરળ ભાષામાં, તમને જો એ વસ્તુ સમજાઈ જાય તો એ તમારા માટે વધારે બેનિફિટેડ રહેશે. તમે એક વખત આ વસ્તુની टीचिंग स्कीम જોવો. देवांग भाई ने कई क्वेश्चन है इन रूब्रिक ऑन डिमांड ऑनलाइन क्विज में कौन से टाइप के क्वेश्चन होंगे? डीसीएन सब्जेक्ट के ही होंगे, नेटवर्किंग के लिए रिलेटेड, वही आप ऑनलाइन क्विज में आप कर सकते हो रूब्रिक ऑन डिमांड में. लेकिन रूब्रिक ऑन डिमांड में क्विज कर रहे हो विच इज ऑल्सो गुड. आप एक्टिव लर्निंग वीडियो मेकिंग पे कोई भी एक टॉपिक के ऊपर अच्छा सा वीडियो बना के भी कर सकते हो. वहां पे गाइडलाइन और एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया गया है. आप यू कैन चूज दैट ऑल्सो. ऑनलाइन क्विज में एक और एडवांटेजेस रहेगा कि लाइक आप उसमें फोरोजन की क्विज भी कर रहे हो ना, 9 चैप्टर की, तो वो क्विज आप डायरेक्टली यहाँ पे जो आप देखोगे, जो आप ग्रेड में जाओगे तो वहां पे फोरोजन क्विज चैप्टर 1 2 3 9 वहां पे लिखा हुआ है. तो आप ऑनलाइन क्विज में भी वो चीज करनी है और एक्स्ट्रा भी करने. तो आप एक बार वो ऑनलाइन क्विज करते हो रूब्रिक ऑन डिमांड में तो वो सेम स्नैपशॉट आप वहां पे भी अटैच कर सकते हो. तो वो एक्सरसाइज साथ में ही हो जाएगी अगर आप ऑनलाइन क्विज का रूब्रिक ऑन डिमांड में आप पोर्शन अभी चूज कर रहे हो तो. ठीक है. सो इज इट अ बेनिफिटेड इन बोथ ऑफ द वे. ये स्नैपशॉट यहाँ पे sorry that connection was lost. So where I have just left, I am not having that in mind.
मैं कहाँ से लेफ्ट हुआ था, आप कोई एक बंदा माइक ओपन करके बताएगा, लाइक व्हाट इज द लास्ट थिंग आई हैव डिस्कस? आनंद, आनंद रायचूरा, कैन सर यू आप टेल? आप कैनवास में कोई टीचिंग स्कीम समझा रहे थे। Yes, yes, canvas में, sorry for that. So let me just share it again and I will show you the teaching scheme. Yes, am I audible now? This connection is continuously getting lost from my side. Okay, sorry for that interruption. Is that audible? Is that audible to everyone? सर यस Okay. हाँ, तो टीचिंग स्कीम में आप देखिए, जो भी आपकी हेलो सर, हेलो हेलो, सर आपकी आवाज नहीं है ठीक से। am I audible? हेलो, यस सर, सर आपकी Okay. स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरा ये कनेक्शन लो सर, अभी मैं अपने मोबाइल से एक्सेस कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको शेयर करता हूँ जो भी टीचिंग स्कीम, जो भी मैं बात बता रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, इज दैट स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन, माय मोबाइल फोन? यस सर। ओके, तो आप, मैं टीचिंग स्कीम बता रहा था। टीचिंग स्कीम में आपको क्या करना है मैं एक बार बता देता हूँ, तो आपको आइडिया रहेगा कि कितना पोर्शन आप कौन सा करोगे। तो आपको फटाक से जो भी मार्क्स और जो भी चीज है वो आप सब सब कुछ आप वेरी अर्ली और फटाफट आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। यस, सो DCN 01IT0301। आप इसमें टीचिंग स्कीम में जो देखोगे तो आपको टीचिंग स्कीम में पता चलेगा कि कंपलसरी चीज कौन कौन सी है जो आपको किसी भी हालत में अभी करनी है। तो उसके लिए फर्स्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ, रूब्रिक ऑन डिमांड, टर्म वर्क। सो यह जो पांचों एक्सरसाइज है, ओके, हार्डवेयर प्रोजेक्ट, C++ कोडिंग, एक्टिव लर्निंग, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सिस्को, आई प्रीफर दोज हु हैव जॉइंड लेट, I prefer that you can go with active learning, video making and online examination because it's going to be finished very early. तो ये कोई भी पांच में से एक एक्सरसाइज कर लोगे तो आपको 25 मार्क मिल जाएंगे। आउट ऑफ 25 यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क आउट ऑफ दैट। इज दैट ओके विथ एवरीवन? जस्ट गिव मी अ फीडबैक इन बिटवीन, सो आई विल जस्ट कीप गोइंग ऑन दैट। Okay, got इज it, दैट sir. ओके? Got it. Yeah, got it, sir. आपके उसके बाद आप फोकस कीजिए यूनिट टेस्ट 1 में। ठीक है, यूनिट टेस्ट 1 के आपके 50 मार्क है। तो यूनिट टेस्ट 1 में आपको क्या करना है, यू कैन सी दिस स्टफ। Unit test 1, which is going to be unit test 1 and unit test 2, which is combinedly having a 50 marks end semester exam. तो यूनिट टेस्ट 1 क्लोज बुक एग्जाम है, जो 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, जिसकी डेट और टाइम मैं आपको बताऊंगा। वो डेट और टाइम पे वो आप यूनिट टेस्ट 1 आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और वो नियर अबाउट 4 चैप्टर्स यू हैव, जो ऑलरेडी हमने एक्स्ट्रा क्लासेस में, वीडियो लेक्चर में, सब जगह पे 3-4 चैप्टर तक तो मैडम ने भी पढ़ाया था, कवर हो चुका है। तो यूनिट टेस्ट 1 देने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वो आप 50 में से मैक्सिमम मार्क आप ले सकते हो, और आपके पास 2 अटेम्प्ट भी है, तो एक में कम मार्क आए तो दूसरे में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, विच इज अ बेनिफिटेड फॉर यू। यूनिट टेस्ट 2 का पेपर सबको अपलोड कर दिया है, जिसको नहीं अपलोड हुआ है मैं आज अपलोड कर दूंगा। तो यूनिट टेस्ट 2 आपके पास सबमिशन तक का टाइम है, जब तक टर्म एंड होता है तब तक आप यूनिट टेस्ट 2 करके ये दोनों का एवरेज होगा तो आप मैक्सिमम मार्क 50 आउट ऑफ ले सकते हो। एंड दैट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इट्स ओपन बुक टेस्ट, तो आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो, उसका आंसर ढूंढ सकते हो, और आप मैक्सिमम आंसर और बड़ा सा अच्छा सा आंसर यूनिट टेस्ट 2 में लिख सकते हो। इज दैट ओके? इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट मच ऑफ द बिग डील, so you can score a 50 maximum mark out of that, those who have joined late, especially a D2D student. Is that okay with everyone? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, सो 50 ये हो गए, 25 मार्क रूब्रिक ऑन डिमांड के। बाकी क्या हो गया, वाइवा। वाइवा में देखिए जो लेबोरेटरी एक्सरसाइज है, जो हम अभी नेक्स्ट लैब से चालू करेंगे, जितना कवर हो सकता है कर सकते हैं। फिर मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, मैक्सिमम एक्सरसाइज आप कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि उसके आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 10 एक्सरसाइज आउट ऑफ 10 मार्क यू कैन गेट। 15 मार्क्स दैट आई विल टेक योर वाइवा। अगर आप वाइवा में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप 15 में से भी मैक्सिमम मार्क आप ले सकते हो। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी दैट मच ऑफ द बिग डील, यू शुड फोकस
लाइक जितने भी एक्सरसाइज हो सके वो जल्दी कीजिए, क्योंकि आपको 10 आउट ऑफ, आपको जितने भी एक्सरसाइज है उसको 10 आउट ऑफ आपको मार्क मिलने वाला है। इज दैट ओके विथ एवरीवन? लाइक वाइवा, वो ओरल वाइवा में से 15 और 10 मार्क 10 एक्सरसाइज के लिए। इज दैट ओके विथ एवरीवन? सर ये ओके सर, एक्सरसाइज की ओके लिस्ट सर। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है? एक्सरसाइज की लिस्ट ये वो सब कैनवास पे आप जाओगे अपनी ग्रेड बुक में, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 करके सब चीजें, वो सब एक्सपेरिमेंट वहां पे लिखे हैं, उसके डॉक्यूमेंट भी है और क्या करना है वो भी उसमें दिया होगा, एक्सरसाइज फॉर प्रोसेस एंड ऑल स्टफ। पीपीटी है तो सपोर्टिव पीपीटी भी होगी, सब कुछ उसमें दिया होगा कैनवास पे। ठीक है, ओके सर। ओके। अभी हम आते हैं, ये टर्म वर्क हो गया, वाइवा हो गया, एंड सेमेस्टर एग्जाम हो गया, और अभी हम बात करते हैं कौन सी चीज की, आईए के लिए। ठीक है, आईए और सीएसई। ठीक है, आईए में क्या चीज है, वर्कशीट होगी, 5 वर्कशीट होगी, एक कोर्सेरा का सर्टिफिकेट होगा, मैक्सिमम मार्क इज गोइंग टू बी कवर्ड फ्रॉम दैट। आईए एंड कोर्सेरा का सर्टिफिकेट, कोर्सेरा का सर्टिफिकेट के लिए लिंक आपको हेतल मैडम ने आपके मारवाड़ी के मेल आईडी पे आई होगी कि आप इस लिंक से कैनवास में ये कोर्सेरा में ज्वाइन हो सकते हो। कोर्सेरा में ज्वाइन होने के बाद फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क्स ऐसा करके एक सब्जेक्ट होगा, अगर वो नहीं ज्वाइन हो रहा है तो आप हेतल मैडम से कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो कोर्सेरा में सब्जेक्ट ज्वाइन होके आप टर्म एंड से पहले वो खत्म कर लीजिए। तो आउट ऑफ द 30, हाफ ऑफ द मार्क डिवाइडेड फॉर द लॉजिकल वर्कशीट, हाफ ऑफ द मार्क डिवाइडेड फॉर द कोर्सेरा सर्टिफिकेट। आप वहां पे मार्किंग देखिए कि भाई लॉजिकल वर्कशीट के कितने मार्क है, वर्कशीट 1 के कितने मार्क है, 2 3 4 5, लाइक कोर्सेरा सर्टिफिकेट के कितने मार्क है। लाइकवाइज वो मार्किंग के हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो कि मुझे कौन कौन सी चीज पहले सबमिट करनी है, कौन सी चीज मैं बाद में सबमिट कर सकता हूँ बिफोर दी सबमिशन डेडलाइन। ओके, तो ये एक एक्सरसाइज रहेगा जिसमें आपको थोड़ा अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ लेक्चर्स पढ़ने होंगे, वीडियो लेक्चर देखने होंगे एंड ऑल स्टफ। लास्ट में जो बचता है वो सीएसी कैनवास क्विज। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत इजी एक्सरसाइज है। कैसे कि आप इसके लिए आप जा सकते हो, लेट मी जस्ट गो इट, लेट मी जस्ट शो इट ओवर हियर। आप क्या कर सकते हो इस चीज के लिए, ठीक है। सो आप डीसीएन में गए, आपको सीएसी की चैप्टर वाइज क्विज करनी है, तो आप देखिए चैप्टर वाइज क्विज कहां पे दी हुई है, यस ओवर हियर, लाइक डीसीएन क्विज नंबर 1 चैप्टर 1 2 3। तो ये अभी ओपन ही है, तो आप इसका ये 3 चैप्टर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, जो कि सब D2D स्टूडेंट के लिए हो गए हैं, अभी जो न्यू स्टूडेंट है दे कैन यूज द रिकॉर्डिंग, बट ये 3 चैप्टर की एक कंबाइंड क्विज होगी। इसमें 10 या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी देयर, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। आप जैसे जैसे ये क्विज अटेम्प्ट करते जाओगे आपको मार्किंग ऑटोमेटिकली इसमें से मिल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट क्विज के बारे में। बाद में बहुत इजी एक्सरसाइज आप देखिए कि चैप्टर 1 एमएचई एजुकेशन डेटा कम्युनिकेशन क्विज। आपको क्या करना है, ये जो लिंक दी हुई है ये लिंक पे जाना है। एक बात सब लोग ध्यान में रखिए कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक जो भी है एमएचई एजुकेशन लिख के क्विज है, वो सब इसी लिंक में से एक्सेस आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चैप्टर 1 सिलेक्ट करोगे तो आपको चैप्टर 1 की क्विज आएगी, चैप्टर 2 करोगे तो चैप्टर 2 की क्विज आएगी। आप ये क्विज यहाँ पे लेट मी जस्ट शो इट ओवर हियर, दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्विज आप अटेम्प्ट करो, ओके। क्विज अटेम्प्ट करके आप सबमिट आंसर करोगे तो आपको बताएगी कि कौन से कितने मार्क आपको मैक्सिमम आए हैं, कितने नहीं है। बट यहाँ पे आपके लिए एडवांटेजेस ये है कि ये क्विज आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो जब तक आपके मैक्सिमम मार्क नहीं आ जाते, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम मार्क चाहिए तो 2-3 बार ये सेम क्विज अटेम्प्ट करोगे फटाफट, तो आपको मैक्सिमम मार्क भी मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही आपका मैक्सिमम मार्क आ जाए, जैसे ही आपका मैक्सिमम स्कोर आ जाए, आपको उसका स्नैपशॉट कहां पे लगाना है, यू नीड टू अटैच द स्नैपशॉट इन दी कैनवास पोर्टल। यहाँ पे चैप्टर 2 में जाके यहाँ पे जो भी सबमिशन है वहां पे उसका स्नैपशॉट लगा दीजिए, दैट्स इट। और ये जो क्विज है आप कंटिन्यूअसली आप बहुत टाइम आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम। अगर ऐसा है कि चैप्टर 9 में आप जा रहे हो और चैप्टर 9 में कुछ अलग ही टॉपिक है, जो टॉपिक आपको नहीं कहीं पे भी वीडियो में नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, तो तुरंत आप मुझे कॉल कीजिए कि सर चैप्टर 9 में इस तरह के क्वेश्चन है, बट मैं वो चैप्टर वो जो क्वेश्चन है वो मुझे हमारे सिलेबस में नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। पर ये जो क्विज आप, it will not take up 5 minutes to complete all this stuff, okay। और वो आप मल्टीपल अटेम्प्ट भी कर सकते हो,
ओके, डिपेंड अपॉन योर लर्निंग, यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स, और जो भी मैक्सिमम स्कोर है आप वहां पे अटैच कर दीजिए. इज दैट ओके विथ एवरीवन और नॉट? जस्ट गिव मी अ फीडबैक. यस सर. तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले वो कौन सी चीज पे फोकस कीजिए, ईएसी पे फोकस कीजिए, रूब्रिक ऑन डिमांड टर्म वर्क पे फोकस कीजिए पहले, ठीक है. वाइवा और वो एक्सपेरिमेंट है वो रेगुलर सेशन में हो रहे उसके साथ करिए, ठीक है, लेकिन पहले यूनिट टेस्ट 2 पे फोकस कीजिए. 1 तो एक दिन आ जाएगा, 1 से 3 चैप्टर का क्विज होगा तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है. तो पहले यूनिट टेस्ट 1 यूनिट टेस्ट 2 पे फोकस करना है, बाद में रूब्रिक ऑन डिमांड पे फोकस करना है, उसके बाद में आपको कहां पे फोकस करना है, सीएसी ये जो क्वीज है उसमें, और बाद में वर्कशीट और आईए में. तो मुझे भी पता है टाइम इज गोइंग टू बी लो, सब चीज पता है, लेकिन एक्सरसाइज का तो मैं बोल रहा हूं कि जो लैब एक्सपेरिमेंट है वो हम रेगुलर क्लासेस में कर लेंगे, लेकिन बाकी का सब चीजें वो आप स्टार्ट करना चालू कर दीजिए तो मैक्सिमम हम सब कुछ चीजें खत्म कर सकते हैं. इज दैट ओके विथ एवरीवन? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क. आपका कोर्सेरा का एक्टिविटी के लिए क्या डेमो है, आपको क्या करना है सिर्फ, अगर आपको अभी तक कोर्सेरा में आप ज्वाइन हो गए हो साक्षी या नहीं, बताइए मेरे को. साक्षी, ओके, ज्वाइन हो गए तो आपको क्या करना है उसमें, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क, लेट मी जस्ट राइट अ नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स. तो आपको वो कोर्स में आपको एनरोल होना है, ठीक है. Let me just Coursera set fundamental of kind of the base network. आपको पता है कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं साक्षी? ओके, आपको पता है कि नो, आपको नहीं पता है. लेट मी जस्ट गिव यू द नेम, और आई विल राइट द सेम. Give me a minute. I will write fundamentals. Network fundamentals are this name of that course. Let me just give you the name. Okay, just kindly wait for a 2 minute. Yeah, so name of the course that you need to join is a fundamentals of network communication. Fundamentals of network communication by University of Colorado. अगर आपका ये जो अभी तक ये सेटअप नहीं हुआ है, आपका जो कोर्सेरा आपको नई इनविटेशन मिला है, तो आप हेतल मैडम को कांटेक्ट कीजिए. मैं यहाँ पे उसका कांटेक्ट नंबर लिख देता हूँ कि हेतल मैडम को कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, उसको पूछ सकते हो कि मैडम हमको या फिर ये कीजिए, जिन जिन लोगों का अभी कोर्सेरा सर्टिफिकेट नहीं हुआ है वो बाद में मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए ये नंबर पे, तो मैं उसके लिए ये जो भी प्रोसेस है वो मैडम के थ्रू मैं करवा देता हूँ. तो आप ये नंबर पे ये लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे कांटेक्ट कीजिएगा तो वो कोर्सेरा का मैं करवा देता हूँ. एनी डाउट, एनीबडी हैविंग राइट नाउ और नॉट, प्लीज टेल मी एनी डाउट. ये पहले डाउट सोल्व होने चाहिए, बाद में हम नेक्स्ट में से सब रेगुलर सेशन और सब कुछ करेंगे. अभी किसी को डाउट है बताइए, यस और नो. अगर डाउट नहीं है सो प्लीज राइट डाउन योर एनरोलमेंट नंबर एंड देन आफ्टर यू कैन लीव. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट करके कभी भी पूछ सकते हैं कि सर क्या करना है, क्या चीजें है, तो मैं आपको सब चीज गाइड करूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. you just ask me or call me on that number. Okay, now after writing your enrollment number you can leave and wait for the next class.
હેલો સર. બોલો હાર્દિક. સર રૂબ્રિક ઓન ડિમાન્ડમાં ઓનલાઈન ક્વિઝ છે હા એમાં જે અમે ઓલા એકથી 9 ચેપ્ટર જે છે ઓલા એના સ્નેપશોટ મેં અપલોડ કરી દીધા છે તો ઈ જ સ્નેપશોટ આમાં યસ 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 સેમ 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 ટુ સેમ ચાલશે ને? યસ યસ માય ફ્રેન્ડ યસ ઇટ્સ વર્ક. ઓકે ઓકે. Okay, I am leaving this meeting. Okay. Any doubt? Sakshi, Utsav, Jai?